Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Acharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। So welcome to your aspiring Charanashraya session. Belong to a group called Upasaka. The exam that you are going to write in August is called Charanashraya. Aspiring, therefore you are called aspiring Charanashraya. That means you will move to Charanashraya after that, but to avoid any confusion, I always am telling at the start of the class, we will call ourselves as aspiring Charanashraya. Today, we will be doing the third of the class sessions. Today is the third class, the third of the sessions for you. So like this, we have about uh, 13 sessions to cover. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. So for ease and for posting this into YouTube, I'm also recording this. So today's class topic is six things or six activities that destroy bhakti. Bhakti pranashyati. भक्ति को नाश करने वाला छह ऐसे कार्य. So what are they? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य. ये छह ऐसे कार्य हैं जिसको करने से हमारा भक्ति का विनाश हो सकता है. So we have to be careful. So what are all this? The next few minutes we'll be dealing with. ये सब क्या है? So to make it easy for you to look at the screen, I'll be increasing the size. आपके पास PDF भी होगा, मैंने भेजा था, तो आप PDF भी खोल सकते हो. So to increase our attachment for Krishna, in the beginning we have to follow some regulative principles, restrictions. तो कृष्णा के प्रति आकर्षण यदि हमें होना है, तो भक्ति के प्रारंभ में हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा. For instance, a doctor will prescribe a treatment. Don't eat this, don't do this, and he will say do this. तो एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो परहेज वो बताएगा कि ये मत खाओ, ये मत सेवन करो और ये चीजें खाओ. Similarly, in Krishna consciousness, there are so many do's and don'ts. तो ऐसे ही कृष्ण भावनामृत प्रगति करने के लिए भी ऐसे बहुत सारे करो मत करो, डूज एंड डोंट्स, ऐसे बहुत सारे नियम हैं. We have to accept the do's and avoid the don'ts. तो जो कार्य हमें करना है उसको हमें स्वीकार करना है और जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए उससे हमें दूर रहना है. तो दिस इज कॉल्ड अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य संवर्जनम. जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, that which is favorable for Krishna bhakti, accept it. Pratikulyasya varjanam, that which is unfavorable for Krishna bhakti, जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, उसको वर्जन करना चाहिए. We should keep it away. We should do away with it. So according to Rupa Goswami, there are 6 impediments to the discharge of devotional service. So Abhideya Acharya, Rupa Goswami, ये कहते हैं कि भक्ति को विनाश करने वाला
छह ऐसे कार्य हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए. सो व्हाट इज दैट? अत्याहारः, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रजल्पः, चौथा नियमाग्रह, पांचवा जनसंग, छठा लौल्य. षड्भुर भक्तिर विनश्यति, ये छह ऐसे अवगुण हैं जिसको अपनाने से भक्ति का विनाश हो जाएगा. सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ what is atyahara, because the same things are explained with meanings in this section. So I'm skipping the paragraph and going to directly the descriptions. Ati ahara, atyahara, ati ahara. So it is very clear what it means. Eating more than necessary. तो आहार का सेवन जरूरत से ज्यादा करना. So it means more than eating more than necessary. Also means collecting funds more than required. जितना मात्रा में धन को इकट्ठा करना चाहिए एक सरल जीवन के लिए, उतना मात्रा में हमें उसको इकट्ठा करना है. जरूरत से ज्यादा धन भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए. सेविंग फॉर अ रेनी डे हैज टू बी डन. मतलब आपातकाल के लिए इमरजेंसी फंड हमें रखना चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए. बट जीवन का उद्देश्य केवल पैसे कमाना, उसके लिए 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे व्यक्ति काम करते रहेगा तो जिएगा कब? और केवल पैसे कमाना जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य नहीं है. मानव जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है. So ahara means eating, and eating also means accumulation, संग्रह करना. So of course any householder requires some deposit in the bank for emergency. तो आपातकाल के लिए कुछ सेविंग्स की जरूरत तो है. Otherwise, those who are renounced order, those who are brahmachari, for them to keep money separately for his maintenance or accumulating bank balance is not allowed. और एक सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए बैंक बैलेंस भी रहना उचित नहीं है. सिमिलरली आहार, ईटिंग, तो ठीक वैसे ही खाने के विषय में, you have to eat only things which can maintain your body properly. हमें ऐसे ही चीज खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर और आत्मा जुड़े रहे. मतलब शरीर के वजह से आत्मा को कष्ट ना पहुंचे और आत्मा भक्ति सरलता से कर सके. इसके हेतु हमें हमारे शरीर का देखभाल करना चाहिए. और keep our body so the body does not become an impediment for bhakti. It doesn't trouble the soul. It doesn't put forth obstacles to the soul for progress in bhakti. So pleasure of the tongue, we should not eat anything. और जब हम करेंगे जीभ का स्वाद के लिए खाना प्रारंभ जब करेंगे उसको बोलते हैं अति आहारा, जरूरत से ज्यादा खाना. सो एक एग्जाम्पल है इस बॉक्स में, आपको अपने आप पढ़ना है. ये भी रूप गोस्वामी जी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृता से दिया गया है. तो अति आहारा से क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अत्याहारा? तो रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इट इज एन इम्पेडिमेंट टू एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ. यदि आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो इस बाधा से हमें उबरना है. If you want to advance in spiritual consciousness, which is the only objective of human life, you should not eat more or collect more than necessary. तो जीवनों देह का रखवाल के लिए और जीवनों के लिए जितना धन चाहिए उतना ही हमें कष्ट उठाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए. Overeating or accumulating more wealth than we need, when we are given free rein in the senses in an effort to enjoy the highest degree, we become degraded. तो degraded, तो इससे मानव जन्म में हानि होगा. क्यों हानि होगा? समय व्यर्थ जा रहा है. मानव जीवन दुर्लभ जीवन है. इट्स अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ लाइफ. What should it be utilized for? Should be mainly utilized for spiritual progress.
आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भक्ति के लिए। उस जीवन को यदि हम पैसे कमाने के लिए हमारा प्रमुख उद्देश्य बन जाएगा, तो उस मानव शरीर का वो अवहेलना है। इट इज कंडेमनेशन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मिसयूज ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो कृष्णा से युक्ताहार विहारस्य, तो खाना तो खाना चाहिए, ईट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी। सो युक्त आहार, सो ईटिंग विथ रेगुलेशन। युक्त विहार, तो रिक्रिएशन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, लेकिन उसमें भी युक्त। युक्त मीन्स रेगुलेटेड फॉर्म, to earn money to the extent that is required for a simple life. So recreation can mitigate all material pains, तो थोड़ा बहुत विहारा होना चाहिए, तो उससे हमारा भौतिक दुख, दारिद्रता को हम भुला सकेंगे। लेकिन उसको उसके ऊपर नहीं आ सकते, बिना भक्ति के नहीं आ सकते। तो स्लीपिंग इज रिक्वायर्ड, वर्किंग इज रिक्वायर्ड, रिक्रिएशन इज रिक्वायर्ड, एंड ऑल ऑफ दैट शुड बी डन अंडर रेगुलेशन। ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। So, but we are thinking, oh, we have got so much food stuff. All right, let me eat up to my throat. इतना सारा खाना तो है, तो मैं अपने पैसे से खरीद सकता हूँ। तो अपने पैसे से खरीदा हुआ खाना है, तो मैं कंठ तक मैं खा सकता हूँ। तो क्या होगा? अगले दिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, सो और दूसरा, कल का क्या होगा, कल के लिए कुछ रखना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक जीवन में नहीं होता है। अनलेस एक इमरजेंसी फंड हम रख सकते हैं, आपातकालीन धन, तो हम बोल सकते हैं सेविंग इट फॉर रेनी डे, बट नॉट सेविंग इट फॉर एंजॉयमेंट फॉर टुमारो। कल ये मैं वहां जाऊंगा, सिनेमा देखूंगा, सो दैट इज नॉट अलाउड। बट इन टुडेज वर्ल्ड टू फॉलो दिस may be very, very difficult. But if we want to progress spiritually, we must minimize our unwanted desires. We must purify our desires. So here is a table जिसमें मैच द फॉलोइंग है, आपको ये होमवर्क के तहत करना है। तो दूसरा जो कार्य है जिससे भक्ति में पतन हो सकता है, प्रयास। प्रयास मतलब जरूरत से ज्यादा कोशिश करना, कार्य करना। किसके लिए? भौतिक चीजों के लिए। भक्ति के लिए भरपूर कोशिश करना चाहिए, उसमें कोई रेगुलेशन होना नहीं चाहिए। वैसे इस मानव शरीर में इस समय हमें भक्ति में भी रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन हम 20-20 घंटे भक्ति कर लेंगे, फिर क्या होगा? मन एकाग्रता नहीं होगा, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो धीरे धीरे हमें भक्ति में भी प्रगति करना है। सपोज वी ओन 25% ऑफ द होल वर्ल्ड, at the time of occupying the land, I require only 6 feet. तो मैं, अगर मेरे पास दुनिया भर का दौलत है, दुनिया भर का जगह है, सारे जमीन है, तो इस भौतिक जगत का 25% जमीन मेरे पास है, तो उससे क्या होगा? मरण काल के बाद मुझे केवल 6 फीट का जगह चाहिए कब्र में। सो तो अगर मैं उस 6 फीट जगह के लिए दुनिया भर का संपत्ति इकट्ठा कर रहा हूं, तो वो एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, गधे का लक्षण। So I only want 6 feet land to lie down. Why am I trying to acquire the whole world? तो क्यों पूरा दुनिया जीतने पे तुले है? तो आपका घर होना चाहिए, गृहस्थी होना चाहिए, उसी में आपको खुश होना चाहिए। आज का चिंता आज के लिए कमाओ, और आपातकालीन धन रखो, और सुखमय जीवन, हमें भक्तिमय जीवन बिताना होगा। So I'm working so hard. What am I eating? Perhaps I'm not eating at all. इतना काम, इतना काम, इतना प्रयास कर रहा है कि खाना पीना बंद। अच्छा खाना खाना है इसलिए कमा रहा है, लेकिन उसी की वजह से वो खा भी नहीं पा रहा है। So when I come home, I take a piece of bread and cup of tea. बस finished. तो घर आते वक्त 20-20 घंटे काम करने के बाद जो भूख है वो भी मर चुका हो।
तो चाय और बिस्कुट खा के, ब्रेड खा के सो जाए। सो ही डज नॉट थिंक व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड, तो क्यों मैं इतना कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई कैनॉट एंजॉय फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मोर मनी मोर मनी मोर मनी, मनी इज हनी, धन है तो सब है, ऐसे लोग सोचते हैं। कितने सारे धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो धनराशि को पीछे छोड़ते हुए मर जाते हैं, बुढ़ापे से, बीमारी से, कुछ मानसिक रोग से, आत्महत्या करने से। कितने लोग मर जाते हैं, वो सब अमीर लोग हैं। पैसा ही सब कुछ होता और पैसे से सारा समाधान या हल मिल जाता, तो ये लोग तो बहुत सुखी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आनंद को अ, गलत जगहों में, गलत सहारे ढूंढ रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या है प्रयास का? So life should be conducted in such a way that our necessities of life may not come with great effort and it comes easily. So yadrucha labha santushto. Krishna is giving this principle in Bhagavad Gita. So we should not encumber ourselves, our life, living policy in an encumbered way. बहुत सारा लोन ले लिया लोभ के वजह से, और बड़ा मकान चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, हॉलीडे जाना चाहिए, इसके लिए हमने लोन ले लिया और उसको पूरा जीवन भर हम चुकता कर रहे हैं। सो दैट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विल बी हैम्पर्ड। इसे करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन में धक्के आएंगे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? काम धंधा तो करना है। कृष्णा खुद भगवत गीता में बोल रहा है कि चूल्हा तो जलाना है, अग्नि को तो जलाना है। बिना अग्नि जलाए, मतलब बिना कोई कार्य करे हुए आदमी आजीव संतुष्ट नहीं रह सकता। तो कार्य तो करना है, लेकिन अति प्रयास नहीं करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे सारे कार्य को मुझे कृष्णा के लिए करना है। वर्क फॉर कृष्णा, डाउटेड माई वर्किंग टेंडेंसी फॉर कृष्णा। सो यू शुड नॉट बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट अटेनिंग मटेरियल गोल्स। कोई भौतिक लक्ष्य पाने के हेतु अति प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और भक्ति में प्रगति के लिए हम अ, प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि वही वो एक चीज है, भक्ति का जो पूंजी है, वही वो एक चीज है जो हम अगले जन्म में लेके जाएंगे और अगले लोक में हम लेके जाएंगे। बाकी सब जो भौतिक है, जिसके लिए हमने घनघोर प्रयास किया, सब कुछ पीछे छोड़ के जाना है। तो तीसरा कार्य है जिससे भक्ति का विनाश होता है, तो या भक्ति में बाधा आ सकता है, वो है प्रजल्पा। प्रजल्पा का मतलब क्या है? इट मीन्स टॉकिंग अननेसेसरीली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। तो भौतिक गतिविधियों के बारे में सबके साथ वार्तालाप करना, गॉसिप, टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, इलेक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है, न्यूज देखना चाहिए। दिन में एक बार न्यूज देखना चाहिए। मैं मुझे ऐसे लोग परिचय हैं जो पूरा दिन उनके घर में न्यूज चैनल ऑन है, तो वही न्यूज आता रहेगा, वही देखते रहेंगे। वही वहां पे खून हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहां पे इमारत गिर गया, यहाँ पे दंगे हुए, यही यही न्यूज है, बस नाम बदलते रहता है। तो इसने ये कह दिया और उस राजकारणी का ये हो गया, उसका पतन हो गया, इसका उद्धार हो गया। यही यही भौतिक विषय है, होता है हमारे अखबारों में, हमारे न्यूज चैनल्स में। उसी न्यूज को बार बार सुन रहे, बार बार सुन रहे। ठीक है, दिन में एक न्यूज सुनो, एक टाइम रखो, लेट नाइट न्यूज, सोने से पहले भागवतम कृष्णा पढ़ना चाहिए। उससे पहले आपका रुचि इतना है कि ये जानना कि जगत में जा क्या हो रहा है, ठीक है, भौतिक जगत में है, तो कुछ जानकारी रखना चाहिए। तो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो एक बार, वो भी हेडलाइंस हेडलाइंस पढ़ो। तो पूरा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और न्यूज चैनल में आप एक तय करो कि एक आधा घंटे का न्यूज आप रात को 8 बजे या रात को 7:30 बजे देखेंगे। तत्पश्चात उसको देखना बंद करना चाहिए। बाकी समय हमें कृष्ण भक्ति में बिताना है। वैसे वो भी चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, तो इस जगत में क्या हो रहा है उसका
जानकारी रखना उचित है। सो वी असेंबल एंड गो ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग फॉर नथिंग, और उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। चाय की दुकान में बैठ गए और घरेलू मामले बात हो रहा है, और वो भी दूसरों के घर के बारे में, अपने घर के बारे में भी नहीं बात हो रहा है। कोई हल नहीं सूझ रहा है उसको, दूसरों को खींचना, दूसरों का अवहेलना करना, यही काम है। सिंपली वेस्टिंग टाइम, दिस शुड नॉट बी डन। सो पॉलिटिक्स, ये हुआ वो हुआ, ये तो रोज का काम है पॉलिटिक्स में। एक राजकारणी दूसरे राजकारणी को खींचने पे तुला है, तो वो तो एक दिन नित्य का उनका उनके लिए कार्य है, लेकिन हमारे लिए वो हेडलाइंस है। जरा सोचिए, वो वो पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए हेडलाइंस है। ऑफ कोर्स दे आर ऑल डूइंग पॉलिसी मैटर्स, लेकिन ज्यादातर पॉलिसी मैटर्स की बात नहीं होता है, केवल अननेसेसरी डिबेट्स होता है। और फालतू अपोजिशन रहेगा तो अननेसेसरीली ऑब्जेक्शंस उठाएगा, अननेसेसरी वॉकआउट्स करेगा, समय बर्बाद करेगा सबका। सो दिस आर सो, अगर मुझे जानना है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, अगले दिन न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको बैठ के पार्लियामेंट में क्या हो रहा है देखने की क्या जरूरत है। मुझे ऐसे लोग पता है जो पार्लियामेंट का सभा को वो देखते हैं पूरा, 4 घंटे का 5 घंटे का जो भी डिबेट होते हैं उसको पूरा सुनते। सो आई डू नॉट नो व्हाट इज द नीड फॉर इट, unless you are a political person and you intend to continue your political life and your material life and not go back home back to God. So Mahaprabhu has very strictly forbidden ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा ना करीबे, इधर उधर की बात नहीं करना है। तो एक एग्जाम्पल इस बॉक्स में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। Prabhupada talks about how a frog is always talking kakaka kakaka kakaka, लेकिन उससे वो क्या हो रहा है, वो सांप को न्योता दे रहा है। सांप को पता चल रहा है कि मेंढक कहाँ है, उसकी आवाज से और उसके मूवमेंट से। बोलते हैं सांप सुन नहीं सकता, लेकिन सांप देख तो सकता है, और वो उसका वो गला ऐसे गुब्बारे की तरह हो रहा है, उसको देख रहा है, हीट सेंस हो रहा है, सांप को आके निगल लेगा। तो ककड़का करके अपना मौत को वो आह्वान कर रहा है। तो ठीक वैसे ही व्यक्ति, सामान्य पुरुष, कृष्ण के बारे में ना बात करते हुए ककड़का दुनिया भर की बातें करते हुए अंत में मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्रजल्पा से क्या होगा, तो इट डिमिनिशेस अवर लाइफ स्पैन, हमारा आयु का क्षीण होता है, वेस्टिंग अवर टाइम। सो क्योंकि वो समय कृष्णा के लिए हमें उपयोग करना था, लेकिन हमने हमारे लिए भी यूज नहीं किया, भौतिक प्रगति के लिए यूज नहीं किया, फालतू फालतू बात करने के लिए उसका उपयोग किया। सो अटर वेस्ट ऑफ टाइम। सो इफ यू टॉक नॉनसेंस देन यू गो टू हेल। और अगर हम बेबुनियाद बातें करेंगे, किसी को दुख करने के लिए गॉसिप फैलाएंगे, तो उससे हमें नरक का यातन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज क्या, बातें तो करना है, बातें तो बनने हुआ, मुंह पे प्लास्टर तो नहीं बांध सकते। कुछ जैन मुनिया मुंह पे मास्क लगा देते हैं, लेकिन बातें बंद नहीं करते। हाँ, जितना जरूरत है उतना करते हैं, लेकिन बातें तो करना है। तो खूब बातें कीजिए, कृष्ण भक्त का ये नियम है, खूब बातें करो। क्या बातें करो? कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में बात करो। एक दूसरे के संग, भक्तों के संग कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए, कृष्ण भजन गाइए, संकीर्तन कीजिए। सो इफ यू चैंट हरे कृष्ण मंत्र, दैट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। दिन में 2 घंटे बैठ के 16 माला करना, 2 घंटे का हमने सदुपयोग किया। फिर 1 घंटे हमने कृष्ण कथा, कृष्णा बुक पढ़ा, 1 घंटे का कृष्ण का संपर्क हुआ हमसे, और समय का सदुपयोग हुआ। फिर बाकी समय जो जीवन के लिए चाहिए उतना किया, और उस तत्पश्चात मंदिर गए, और मंदिर में कुछ 1-2 घंटे सेवा कर लिया। यही जिंदगी का हमारा ध्येय होना चाहिए, और धीरे धीरे हमारे भौतिक गतिविधियों को क्षीण करते हुए आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट कृष्णा,
हरे कृष्ण महामंत्र, देन यू गो बैक होम, बैक टू गॉड। तो ये एक ऐसा उपहार है हमारे लिए। बातें करो, बातें करो, बात कर करके कृष्णा के गोलोक चले जाओ। क्या बातें करना है? कृष्ण कथा, हरे कृष्ण मंत्र जपा। सिंपली बाय टॉकिंग, बाय चैंटिंग, यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। बट इजंट मौनम बेटर? जैसे साइलेंस इज गोल्डन, तो उसका अर्थ क्या है? नॉनसेंस बात नहीं करनी, उससे बेहतर है चुप रहो। मुंह खोलेंगे, कुछ अनाप शनाप बक देंगे, जैसे कि एक फेमस पॉलिटिशियन है, आजकल बहुत फेमस है, उसके लिए उसको एक नाम भी मिल चुका है। वो सब मैं बात नहीं करूंगा इसमें, बिकॉज टू पॉलिटिकल। तो दैट इज ऑल नॉनसेंस टॉक। अपना अपना मुंह खोलेगा, अपना मूर्खता दिखाएगा। तो हमें भौतिक चीजों के लिए हम मुंह खोलना है, और आध्यात्मिक चीज के लिए हमें मुंह खोलते बात करते ही रहना चाहिए। सो इफ आई हैव एन ऑप्शन बिटवीन कृष्ण कथा एंड साइलेंस, आई मस्ट चूज कृष्ण कथा। इफ आई हैव एन ऑप्शन बिटवीन साइलेंस एंड nonsense material talk, then I must choose silence. This is what means silence is golden. तो ये एक भौतिक कहावत है। तो भौतिक कहावत इसलिए है क्योंकि बातें करेंगे तो अपने मेंढक मेंढक की तरह शाम को आवाह ना करना। तो दैट इज द व्यू इन विच द ऑथर हैज गिवन दैट। और शास्त्र में भी दिया गया है, तो प्रजल्प मत करो, उससे बेहतर है चुप बैठ जाओ, मौन व्रत ले लो। लेकिन मौन व्रत में ही नहीं रहना है, उसके बाद हमारी वाक शक्ति का उपयोग करके प्रचार के लिए, प्रवचन के लिए, कृष्ण कथा का डिस्कशन के लिए, फॉर डिस्कशन ऑफ कृष्ण कथा हमें उपयोग करना चाहिए। महाप्रभु ने बोला है, वन हैज टू चैंट एंड टॉक ऑफ कृष्ण 24 आवर्स। तो मौन की कहाँ गुंजाइश है यहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे 24 घंटे हमें बात करते रहना चाहिए, हो सके तो जपा करते रहना चाहिए, कृष्ण कथा बोलते रहना चाहिए। सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ साइलेंस। सो साइलेंट वही होते हैं जिसको नॉनसेंस बातें में उलझना नहीं है, उसको साइलेंट रहना है। लेकिन हमें हमारे वाक शक्ति को कृष्णा की भक्ति में लगाना है। चौथा ऐसा कार्य है जिससे पतन होगा भक्ति में, वो है नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब क्या है? इसमें दो अर्थ आता है, नियम आग्रह, नियम आग्रह। तो इसका मतलब है तो कोई आध्यात्मिक शास्त्र में दिया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करना। तो आग्रह, ईगरनेस टू एक्सेप्ट, तो इससे ये बेनिफिट होगा। कर्मकांडीय बातें, तो ये नियम आग्रह है। दूसरा अर्थ है नियम आग्रह, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ना फॉलो करना, फेलियर टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल 4 प्रिंसिपल्स, उसका फॉलो नहीं करना, वो नियम आग्रह है। नियम आग्रह केवल कर्मकांडिया जो कार्य है उसमें लगा, उसमें लगना, वो भी बुरी बात है। अगर कृष्णा को पाना है और कृष्णा पाने का हमारा उद्देश्य है, तो वी शुड नॉट गेट caught up in just the rituals. We should move fast towards the end result required. So those interested in Krishna consciousness should not be able to accept rules and regulations for economic development. So कर्म कांड्य मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, भौतिक दृष्टिकोण का मोक्ष, उसके लिए कार्य करना। तो उससे क्या होगा? भौतिक जगत में ही रहेंगे, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। सो दैट वी शुड नॉट गेट अटैच टू दैट। नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, और नियम आग्रह भी नहीं करना है। जैसे कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए हरे कृष्ण मंत्र 16 माला जपा करो, 4 नियमों का पालन करो, और इसका पालन नहीं करना, वो नियम आग्रह है, वो भी नहीं करना है। मतलब हमें पालन करना है सारे नियमों का। तो देर इज एन एग्जाम्पल हियर गिवन फॉर नियम आग्रह। इस बॉक्स में आप इस एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लीजिए, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ होमवर्क आई हैव टू गिव यू। दिस इज योर होमवर्क, द बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये आप अपने आप करेंगे। तो इससे क्या होगा? नियमाग्रहण से तो केवल गति मतलब रूल्स रेगुलेशंस में फंसे रहेंगे, तो क्या होगा?
तो वो एक का रूटीन सा बन जाएगा, रिचुअल सा बन जाएगा। असली उद्देश्य कृष्ण का भक्ति है, तो उसकी ओर ना जाते हुए केवल नियमों में फंसे रहना। दूसरी ओर नियमों का पालन ही नहीं करना है, जो भक्ति में आगे लेके जाएगा वैसे नियम पालन ही नहीं करना है, वो भी आ, आ, गलत है। तो हमें देखना चाहिए कि ये दोनों गलती हम ना करें। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उत्तर क्या है? सो तो इसका सोल्यूशन है कि हमें हमारा समय वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार में हमें लगाना चाहिए। तो हमारा प्राण धन, वाक शक्ति और बुद्धि शक्ति, सब कुछ, हमारी सारी शक्तियां, खुद हम हमारे देह और हमारे आत्मा को कृष्णा के भावनामृत, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में गुरु के लिए समर्पित करना, ये हमारा उद्देश्य होना है। ये दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज हाउ यू शुड डील विथ नियम आग्रह। सो टू एंगेज इन प्रीचिंग वर्क, टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर इन द टेम्पल, मंदिर में गुरु का सेवा करना, ये हमें करना चाहिए। जनसंघ क्या है? जनसंघ which causes fall down is associating with worldly minded people। जैसे अ, लोगों के साथ हमारा संपर्क होगा वैसे हम बन जाएंगे। ज्यादा दिन हम बेवड़ों के साथ, वन कीप ड्रिंकिंग, उनके साथ रहेंगे तो हम भी एक ना एक दिन बोतल उठाएंगे। तो ठीक वैसे ही भक्तों के संग करेंगे तो एक ना एक दिन भक्ति का किरण हमारे अंदर जागेगा। सो जनसंघ इज सिंपल। जनसंघ मीन्स एसोसिएटिंग विथ मेटेरियलिस्ट, जो ऑपोजिट सेक्स में बहुत आसक्ति रखते हैं, और इंद्रिय सुख के लिए प्रयास, अति प्रयास करते रहते हैं, तो और नास्तिक है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो अ, कृष्णा ने भी वैष्णव सिद्धांत बताते हुए असत संग त्यागी ए वैष्णव आचार। सो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने ये बताया है कि असत संग त्याग करना चाहिए, यही वैष्णव का आचार है। जो असत है उसके संग नहीं रहना है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सिचुएशन हो, संदर्भ हो, उसमें हमें नहीं रहना। So Prahlad Maharaj also prays to the personality of Godhead that he may avoid the association of non-devotees। मुझे ऐसे भौतिक मानसिकता के लोगों से आप बचा के रखो हे नरसिम्हदेव, और मेरे गुरु नारद मुनि का सेवा करने का मुझे मौका दीजिए, और दुनिया के लोगों का भक्ति में उद्धार करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे प्रहलाद महाराज अपना समय को बिताने, कैसे बिताना है वैसे नरसिम्हा देव से प्रार्थना कर रहे हैं। सो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ही गिव्स अप द सोसाइटी ऑफ प्योर डिवोटीज, ही मस्ट एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज। तो सत्संग नहीं करेंगे तो असत्संग तो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट हम असत्संग में हैं, तो हमें हमेशा सत्संग करना है, यही सोल्यूशन है। सत्संग में बैठो, संकीर्तन करो, कृष्ण कथा सुनो। तो सत्संग कहाँ होता है? क्लब में, बार में, घर में कम ही होता है। घर में तो कम ही होता है, मंदिर में गुरु के बाकी सारे शिष्य मंदिर में आएंगे, हम सब साथ में बैठ के भागवतम सुनेंगे, फिर सेवा करेंगे भगवान का, फिर आरतियां उसमें भाग लेंगे। यही है सत्संग, दैट इज अ सॉल्यूशन। दैट इज हाउ वी कैन कम आउट ऑफ माया's clutches and engaging love by engaging in loving service of the Lord। भगवान की सेवा में अपने आप को नियोग करना। और छठा जो कार्य है, लवल्य। लवल्य मीन्स ग्रीड, लोभ, भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने का, भौतिक चीजों को पाने का लोभ। वैसे भक्ति में लोभ होना चाहिए, भक्ति में लोभ होना अच्छी बात, और सेवा करना है, और सेवा करना है, और माला जपा करना है, ये ठीक है। लेकिन जब ये लवल्य, this greed is applied for material achievements, and there is a downfall।
भक्ति का प्रगति, भक्ति में आ ही नहीं पाएंगे हम। If your tongue wants some nice palatable dishes, we can supply you hundreds and thousands offered to Krishna. कृपा जी बोलते हैं जीभ को रुचि आ, आहार चाहिए, तो ऐसे हम आहार आपको दे सकते हैं। कृष्णा कृष्णा के मंदिरों में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, तो आप उसको खा सकते हैं। सो बट डोंट टेक टू मच। दैट इज वेरी पैलेटेबल, लेट मी टेक 1 डजन रसगुल्ला, प्रसाद है, लेकिन जा रहा है इस शरीर में, तो ये शरीर अभी भौतिक शरीर है, अभी पका नहीं, अभी वो सादगी, उस सादगी में पूरी तरह उत्तीर्ण नहीं हुआ है। इट इज नॉट elevated itself in bhakti, so it will behave materially। कुछ हद के बाद वो रसगुल्ला हमें मतलब पेट नाचने लगेगा, फिर अगले दिन बहुत ही कष्ट होने वाला है। सो वी मस्ट, दो इट इज प्रसादम, प्रसादम इज ट्रांसेंडेंटल, बट आवर बॉडी इज नॉट, सो वी हैव टू ईट प्रसादम आल्सो इन अ रेगुलेटेड मैनर। ऐसा नहीं कि पेट भर के खा लिया, कंठ तक खा लिया क्योंकि प्रसाद है, क्योंकि हमें हजम करने का शक्ति नहीं है, पर वी आर नॉट महात्मास, अभी हम बहुत ही बद्ध जीवी हैं। सो इफ यू सिंपली टेक सो मच एज इट विल कीप योर बॉडी फिट, दैट्स ऑल। प्रसाद भी हमें एक हद तक फॉर द अपकीप ऑफ दिस बॉडी एंड फॉर द एलिवेशन ऑफ द सोल, तो प्रसाद खाने से आत्मा का उद्धार होता है, तो उसके लिए हमें खाना चाहिए। सो बट आई एम वेरी ग्रीडी, वेर इज वाइन, वेर इज वुमन, वेर इज क्लब, वेर इज डांस, आई एम वेरी ग्रीडी। तो मुझे नंगा नाच देखना है, स्त्री संग करना है, मदिरा पीना है, क्लब में जाना है, नाचना है, तो ये इस लोभ से हमें कृष्ण की और इस लोभ को मोड़ना है। मंदिर कब जा सकते हैं, वहां भक्तों के संग कब कर सकते हैं, वहां प्रसाद हम कब पा सकते हैं, वहां आरती कब अटेंड कर सकते हैं, ये लोग होना चाहिए, और इसके लिए हमें भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। तो इन द बॉक्स अगेन देयर इज एन एग्जांपल, यू कैन जस्ट रीड दैट। व्हाट इज द इफेक्ट, ये भौतिक लौल्य से क्या होगा, आध्यात्मिक पतन तो होगा ही, जैसे लोगों के साथ मिलेंगे वैसे हमारा जीवन उसी ओर मुड़ जाएगा और बह जाएंगे हम। वो तो बह ही जाएंगे, वो तो डूबने वाले हैं, हमें साथ में लेके डूबेंगे। अंधा यथांधे उपगीय माना, अंधा जो व्यक्ति है वो हमें क्या रास्ता दिखा सकता है, तो हमें उस जगह पे जाना है जहाँ पे हमारे गुरु हैं, जो हमारे आंखों को खोलेंगे और हमें रोशनी की ओर, ज्योति की ओर लेके जाएंगे। असतोमा सद्गमया, और गुरु के और भक्तों के संग से, उनके साथ रहने से ये मुमकिन है। So to become a devotee is not to become important, but everything has proper use. Even the sex desire, it can be used to produce Krishna conscious children. Prabhupada says, if you have the capacity to upbring 100 children and make them Krishna conscious, do it. अगर आपको इतना समय है, इतना शक्ति है, तो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। सो I must have very good association. Where is Krishna consciousness being preached? वहां पे मुझे जाना चाहिए, जैसे कि आप सब लोग आज इस सत्संग में आके बैठे हैं, तो दिस इज eagerness to progress. So these are the 6 topics that we have to discuss. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।